Today, in exercise 6.2, we will learn about the common multiples and the lowest common multiples. Till here, in exercise 6.1, we studied about the multiples. हमने अब तक मल्टीपल्स के बारे में एक्सरसाइज 6.1 में पढ़ा था. आज हम एक्सरसाइज 6.2 में कॉमन मल्टीपल्स और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे. सो द कॉमन मल्टीपल when two or more numbers can have same multiple. Example, when we have multiples of 2, the multiples of 2 are the table of 2, or if we multiply 2 and 1, the product is 2. Similarly, 2 into 2, the product is 4, and the product is called the multiple. ये हमने exercise 6.1 में समझ लिया था. Now, the multiples of 2 are 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, and 20, and 22, and 24, and so on. We can write so many unlimited multiples of 2. Similarly, we can write the multiples of 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, and so on. We can write unlimited multiples for 3. But the common multiple definition is saying that two or more numbers, like 2 or 3, we have two or more numbers, we have two numbers here, can have the same multiple. 2 and 3 का same multiple भी हो सकता है. हो सकता है मतलब होता है. Can मतलब होता है. ये देखेंगे हम 2 and 3. Listen very carefully. The 2 is not in the table of 3. So this is not the common multiple. 4 is not in the table of 3. It is only in the table of 2. That's why 4 is also not the common multiple. 6, yes, we have 6 as a common multiple of both 2 and 3. Because 6 is present as the multiple of 2 and 6 is present as the multiple of 3 also. Now 8 is not present in the multiples of 3, so 8 is not the common multiple of 2 and 3. Then we have 10. No, 10 is not the multiple of 2 and 3. It is only the multiple of 2 here. But it is also the multiple of 5. Okay, next is 12. Yes, 12 is the common multiple of 2 and 3. Yes, because it present in the multiples of 2 and in the multiples of 3. Similarly, 14 is not there, 16 is not there, 18 is the common multiple of 2 and 3, and so on. अगर हम यहाँ पे आगे 2 के मल्टीपल्स लिखें, आगे 3 के मल्टीपल्स लिखें, तो हमें और भी कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे. So the common multiples here we have 6, 12, 18, and so on. So you can know this is the table of 6. देखो ये table of 6 है ना, 6, 12, 18. अगर हमें अगला मल्टीपल जानना हो तो क्या आएगा, ये हम बता सकते हैं हम. Okay, now what is the lowest common multiple? Lowest common multiple is when we know the smallest multiple among the common multiples. अब हमने इतने सारे कॉमन मल्टीपल्स निकाल लिए, 6 की टेबल जितनी भी है या 6 के मल्टीपल जितने भी हैं वो सारे के सारे कॉमन मल्टीपल्स होंगे 2 and 3 के. तो हमें जानना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब स्मॉलेस्ट मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल. तो हमारा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल 6 होगा. सो द एलसीएम इज 6 ऑफ 2 and 3. ओके, नाउ दिस इज योर इंट्रोडक्शन टू द एलसीएम. So this is your question number 1. Write the first 10 multiples of 6 and 9 and circle the common multiples. So you have to write the first 10 multiples of 6 and 9. So the first 10 multiples of 6, 10 multiples of 6 is the table of 6 up to 10, right? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 and 60. And 10 multiples, first 10 multiples of 9 are the
table of 9 up to 10, right? 9, 18, 27, 36, 54, 45, 54, 63, 72, 81 and 90. Now circle the common multiples and you have to circle the common multiples. So is 6 is the common multiple between 6 and 9? No. Then we have 12? No. Then we have 18? Yes, 18 is the common multiple between 6 and 9. Now, do we have 24? No. 30? No. 36? Yes, 36 is the common multiple between 6 and 9. ऐसा multiple जो 6 के multiples में भी है और 9 के multiples में ही है, दोनों जगह as a multiple present है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? Common multiple, right? Now 42, no. 48, no. 54, yes. 54 is present as the multiple of 6 and 9. So the common multiples are 18, 36, 54. 18, 36 and 54. और अगर हम इनके मल्टीपल्स को आगे लिखते हैं, 9 के मल्टीपल्स को भी आगे लिखते हैं, तो हमें कॉमन मल्टीपल्स भी और बहुत सारे मिल जाएंगे। नाउ व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम बताएंगे मुझे। एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हमें इन तीनों मल्टीपल्स में सबसे छोटा वाला कौन सा कॉमन मल्टीपल है? तो सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल है 18. सो 18 इज आवर एलसीएम। Lowest common multiple, smallest common multiple. Okay, now the question number 2. In this question 2, you have to write the first 3 common multiples. You have to write the first 3 common multiples. और common multiples के लिए सबसे पहले हमें multiples पता होना चाहिए। तो हमें question number A दे रखा है 4 and 6 के हमें first 3 common multiples बताने हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? The multiples of 4. We will find the multiples of 4. Then, and we write the multiples of 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 and so on. Similarly, we will write the multiples of 6. Multiples of 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 and so on. Yes, तो हमने यहाँ पे मल्टीपल्स लिख लिए, 4 के भी लिख लिए और 6 के भी लिख लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड द 3 कॉमन मल्टीपल्स। एनी नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट 3 मल्टीपल्स। हाउ मेनी? फर्स्ट 3 मल्टीपल्स। सो वी विल फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स। इज 4 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ द 4 and 6? नो। 8? नो सर। 12? यस सर, 12 is the common multiple for 4 and 6. Then 16 is a common multiple or not? No sir, 16 is not a common multiple of 4 and 6. And 20? No sir, 20 is also not the common multiple of 4 and 6. 24? Yes sir, 24 is present both in both the multiples of 4 and 6. So 24 is the common multiple. Now 28? No. 32? No. 36? Yes sir, 36 is a present as a common multiple of in both 4 and 6. Right? अगर हम आगे भी निकालना चाहें इनके common multiples तो निकाल सकते हैं। Like अगर हम यहाँ पे 44 और उसके बाद में 48 लिखेंगे, फिर आगे इनके multiples लिख सकते हैं, तो हमें 48 as a common multiple मिल जाएगा। उसके बाद में 60 as a common multiple मिल जाएगा। मैं कैसे बता रहा हूँ वो भी आपको बताता हूँ अभी, कि मैं आगे वाले multiples कैसे निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे सबसे पहले common multiples मिल गए 12, 24, 36। अब आप ध्यान से देखो यहां पे ये जो टेबल है एंड सो ऑन, तो हमारे जो कॉमन मल्टीपल्स हैं ये कौन से टेबल फॉर्म कर रहे हैं, ये कौन से ऑर्डर में चल रहे हैं? दिस इज द टेबल ऑफ 12, 12, 24, 32। तो हम आगे बता सकते 36, तो हम अगला वाला बता सकते हैं ना, अगला वाला कॉमन मल्टीपल कौन होगा हम बता सकते हैं आराम से। अब तो हमने यहाँ पे ये पैटर्न देखा कि कॉमन मल्टीपल अगर हमें पता है, पहला वाला कॉमन मल्टीपल पता है, तो उसके सारे आगे जितने भी होंगे वो सारे के सारे टेबल होगी उसकी, है ना, उसी में 1 2 3 4 5 6 उसी के मल्टीपल्स होंगे। 12 के मल्टीपल्स निकालेंगे तो 24, 36, जो कॉमन मल्टीपल निकल के आया सबसे पहला वाला उसी के सारे मल्टीपल्स हैं, है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं नाउ, ये तो हमें क्वेश्चन हो गया यहाँ तक
लेकिन अब हम यहां से क्या क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है जो पहले नंबर पे लिखा होता है वो हमारा एलसीएम हो जाता है। और हमने यहां पे ये भी सीखा कि जो पहला एलसीएम है, जो सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल है, जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो हमारा स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है, उसी के मल्टीपल्स बाकी सारे कॉमन मल्टीपल्स होते हैं। ओके, नाउ वी कैन फाइंड more multiples of 4 and 6. How can we find? If we have to find more multiples of 4 and 6, then we will find the multiples of 12. अगर हमें 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स चाहिए तो हम 12 के मल्टीपल्स निकालेंगे आगे, और 12 के मल्टीपल्स ही कॉमन मल्टीपल्स होंगे, क्योंकि 12 का मल्टीपल 24 है, वो भी कॉमन मल्टीपल है, 12 का मल्टीपल 36 है, वो भी कॉमन मल्टीपल है, राइट। तो फोर्थ वाला कितना हो जाएगा? 48. Fourth will be the 48 and so on. We can find unlimited common multiples. Like if multiples are unlimited, then common multiples are also unlimited, right? Now we will do the question number B. On the basis कि हमें अब multiples ना निकालने हो बार बार, और डायरेक्ट हम कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकाल सकते हैं। मल्टीपल्स से हम कॉमन मल्टीपल तो इस सिंपल मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन इन बी पार्ट में हम देखेंगे कि हम विदाउट यूजिंग मल्टीपल्स हम कॉमन मल्टीपल डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 7 and 8. So we will write the multiples of 7 first. The multiples of 7 are 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 and so on. Right? And the multiples of 8 are 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 and 80 and so on. हम unlimited multiples लिख सकते हैं 7 and 8 के. Now we will find the common multiple. Is 7 is the common multiple of 7 and 8? No sir. 14 no, 21 no, 28 no, 35 no, 42 no, नहीं आ रहे हैं कहीं भी 8 की टेबल में, 49 भी नहीं आ रहा है कहीं भी, and then we have 56 and then we have 56 as a common multiple of 7 and 8. अच्छा, अभी तक हमें सिर्फ एक ही मल्टीपल मिला है, और अगर हम आगे जाएंगे तो खत्म हो गए हमारे तो मल्टीपल 7 के भी और 8 के भी। इसका मतलब हमें और लिखने पड़ेंगे मल्टीपल 7 और 8 के, तब हम बता पाएंगे कि 7 और 8 का कॉमन मल्टीपल कौन है। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर आती है आपकी ट्रिक। ट्रिक कब काम करती है? देखो, ये 7 है और ये 8 है ना। अगर मुझे पहला मल्टीपल पता है, पहला मल्टीपल अगर मैंने निकाल लिया है, तो मैं बाकी सारे मल्टीपल्स आराम से निकाल लूंगा। देखो, सबसे पहला मल्टीपल कॉमन मल्टीपल कौन आया है? सबसे पहला कॉमन मल्टीपल 56 आया है ना। सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन आया है? 56 आया है। अब मुझे सेकंड भी पता लगाना है, थर्ड भी पता लगाना है, ऐसे करके मुझे आगे भी कॉमन मल्टीपल्स पता लगाने हैं। तो अरे सर, आप तो जानते हो कि हमारा जो फर्स्ट मल्टीपल कॉमन निकल कर आया है, फर्स्ट जो कॉमन मल्टीपल निकल कर आया है, इसी के मल्टीपल निकाल लो सर, इसके मल्टीपल ही कॉमन मल्टीपल्स होंगे। हाँ बेटा, ये बात तो सही कह रहे हो आप कि अगर मैं 56 के ही मल्टीपल्स निकाल लूं, 56 मल्टीप्लाई बाय 2, 56 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड सो ऑन, तो ये सारे के सारे कॉमन मल्टीपल किसके होंगे? 7 and 8 के। 56 मल्टीप्लाई बाय 2 is 112, 56 मल्टीप्लाई बाय 3 is 168। तो ये मल्टीपल्स तो 56 के हैं, लेकिन कॉमन मल्टीपल 7 and 8 के हैं, है ना, बिकॉज दिस इज 56 मल्टीप्लाई बाय 1, सो दिस इज ऑल्सो अ टेबल ऑफ 56। जैसे हमने टेबल ऑफ 7 लिखी थी, टेबल ऑफ 8 लिखी थी, वैसे ही हमने टेबल ऑफ 56 लिख देंगे, तो ये कॉमन मल्टीपल्स किसके हो जाएंगे? 7 and 8 के। एंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को हम एलसीएम भी बोलते हैं। सो दिस इज अ एलसीएम आल्सो। ओके, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से करें तो बहुत ही इजीली हम इसको कर सकते हैं। तो ट्रिक से करके देखते हैं एक बार इसको, क्वेश्चन नंबर 2 बी को।
तो अब मुझे देखना है ट्रिक से मैं कैसे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकता हूं 7 एंड 8 के। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 8, 7 का 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट वाले कॉमन मल्टीपल को निकालने के लिए। बिकॉज यहां पे हम देख सकते हैं कि 7 और 8 को ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है 1 को छोड़कर जो 7 को भी डिवाइड कर दे और 8 को भी डिवाइड कर दे। लाइक वी कांट डिवाइड 7 एंड 8 बाय द सेम नंबर, और ये एक दूसरे को भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारी ये वाली ट्रिक यहां पे काम आएगी। ओके, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये दोनों नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं या फिर किसी कॉमन नंबर से इनको डिवाइड कर सकते हैं लाइक, तो फिर उनमें ट्रिक कैसे लगाएंगे, उसमें भी हम ट्रिक का यूज करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ इतना जानेंगे कि अगर ये दोनों नंबर्स आपस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं और ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो 7 और 8 को भी डिवाइड कर दे, तो हम ये वाली ट्रिक को यूज करना सीखेंगे। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए मैंने इन्हीं दोनों नंबर्स का यहां मल्टीप्लाई कर दिया और मुझे प्रोडक्ट कितना मिल जाएगा, 56 मिल जाएगा। अब ये पहला कॉमन मल्टीपल आ गया, इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। अब मुझे सेकंड फाइंड करना है और थर्ड फाइंड करना है। सर अभी तो आपने बताया था कि हम अगर सेकंड और थर्ड फाइंड करना चाहते हैं कॉमन मल्टीपल ऑफ 56, देन वी हैव टू जस्ट find the multiples of 56. Now we have to just find the multiples of 56. So the 56 multiplied by 1 is 56. Now 56 multiplied by 2 is the second multiple, common multiple of 7 and 8, and 56 multiplied by 3 is the third multiple of 7 and 8. Okay, so 56 2s are 112 and 56 3s are 168. ओके, यहां पे हमने कहीं भी मल्टीपल्स ऑफ 7 एंड मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखी नहीं है और फिर उनमें हमने कॉमन नहीं ढूंढा है। यहां हमने डायरेक्ट किया है विद यूजिंग ट्रिक, बाय यूजिंग ट्रिक हमने डायरेक्ट 7 और 8 का कॉमन मल्टीपल निकाला है। बस हमें पहला कॉमन मल्टीपल पता लग जाए तो हम बाकी के कॉमन मल्टीपल्स जितने भी वो पूछना चाहे सारे निकाल सकते हैं, जस्ट फाइंडिंग द मल्टीपल्स ऑफ द कॉमन मल्टीपल। अगर हम कॉमन मल्टीपल्स के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे तो वो 7 एंड 8 के कॉमन मल्टीपल्स ही होंगे सारे के सारे। नाउ योर होमवर्क इज क्वेश्चन 2B पार्ट, C पार्ट is in your homework. That is a very easy question और PDF आपको मिल ही जाएगी। Thank you and have a nice day.